So we are going to begin with the event, and I can see most of the parents have come with their kids to understand what is going to happen with them. Bass or इसका volume. I'm sure आप सभी excited हैं. Even I am excited because this topic जो है ये मैं पहली बार सुन रही हूँ because we all are so confused in our everyday lives as to what is going to happen about our future, but we have a person here who's going to come and talk about it so that we are relieved as to at least we know 50-60% कि ठीक है हमारे करियर में ये तो हो ही जाएगा with his help. But before ready है आप सब ready हैं? Okay, so with that excitement and energy, the stage is all yours, Swapnil. And also, I'm also going to be the one who wants to know what my future beholds. Thank you. Hello. Yeah. So, good afternoon, everyone. I know it's a bright sunny day and the time is the bright, like you can say 12:30. So, it's pretty hot outside, right? Yeah, so don't worry. I will chill you down because the majority of the crowd will be thinking about their life, their career, their personality, their future. जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा, मैं शादी किसके साथ करूँगी, कैसे पति मिलेगा, right? Yeah, so there are answers to all these questions. And first of all, I would like to thank all the Jito team members, the Jito coordinators, and the event managers. I can see a beautiful stage here, a beautiful setup. So I would thank Jito team for this. I had the same session in Jito Youthing in the Korean clubs like 2 years back. And that was also like a great event. And I think that's why they called me again. So first of all, I'm thankful to them for calling me again. And let me tell you first of all, like many were confused. Someone asked me कि ये मेरे लिए है नहीं है. So DMIT is from age group 4 till your life, whatever your life is. And today I'm not going to talk only on DMIT. I'm going to talk on multiple aspects of your life. Like इसको आप connect कर पाओगे. I can even see like a lot of youth over here, 10, 12, UGs, PGs भी है कुछ. Yes. So this is for everyone. So I think let's start with it. Okay. So everyone is ready for it. Yes. Okay. Okay, the first question goes, how do you choose your career? See, this is going to be a very interactive session. Like जब मुझे पूछा गया था, like what will you require while your session? I said मुझे audience बोलने वाला चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. So I would request एक mic अगर आप audience में दे दो, I would like to interact with each one of them. So I want to know the first answer, like how do you choose your career? Like आप career कैसे choose करते हो, करने वाले हो, क्या है? Can anyone answer? Like यहाँ पे कुछ youth बैठा हुआ है, like can you pass on the mic over here? Yes, please. कैसे career कैसे चुनते हैं? Yeah, based on interest. Very good. और कैसे चुनते हैं? करियर कैसे चुनते हैं? चलो मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं जो सब कनेक्ट कर पाएंगे. घर वालों ने ये बोला, मेरे बाजू वाले ने वो किया, वो यूएस में जाके बैठ गया. मेरे मौसी का लड़का कुछ ये डिग्री किया इस कॉलेज से, वो कनाडा में सेटल हो गया. राइट? ऐसे कुछ सुनने आता है. स्पेशली द किड्स ओवर हियर, लाइक आप ऐसे सुनते हो रोज मम्मी टॉन्ट मारती है,
पापा बोलते देख शर्मा का बेटा किधर गया, तू देख नालायक इधर बैठा है, आईपीएल देखते बैठा है. राइट? सुना है? होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, करियर कैसे चूज करते हैं? इंजीनियरिंग कर, वो देख इंजीनियर बन गया, किधर गया देख, जा भाई इंजीनियर कर ले. बच्चा भी मुंह उतारे चला जाता है, फॉर्म भर देता है, कहीं ना कहीं इंजीनियर करके निकल जाता है. उसके बाद क्या? सो मैम आपने बोला था कि इंटरेस्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली. इंटरेस्ट जिसमें है उसमें करियर करना चाहिए. राइट? राइट और रॉन्ग? एवरीवन इज सेइंग राइट और रॉन्ग? ओके. अभी खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो. बचपन से लेके अब तक कितने बार इंटरेस्ट चेंज हुआ? हुआ नहीं हुआ? गिव मी जेन्युइन आंसर प्लीज, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, मैं भी इन सबसे गुजरा हुआ हूं. इंटरेस्ट चेंज हुआ नहीं हुआ? पहले मुझे माधुरी पसंद थी, अब मुझे आलिया पसंद है. इंटरेस्ट चेंज हुआ नहीं हुआ? होता है. तो भाई अब कैसे करें? पहले आईपीएल था नहीं, तो गली में क्रिकेट खेलते थे, तब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्रिकेट को देखा नहीं. आज आईपीएल में स्कोप है, कबड्डी में स्कोप है, तो अब क्या करें? सो व्हाट कैन यू डू दैट टाइम? बेसिकली आपका इंटरेस्ट बदलते रहता है. एज द टाइम, एज द एनवायरमेंट, योर इंटरेस्ट goes on changing. Am I right? ये हुआ है सबके साथ? Okay. Again my question is unanswered. फिर करियर कैसे चूज करते हो आप लोग, बताइए. और कोई अलग? Yes, the lady over there. Okay, well, as she said that interest makes a big difference, I would say it's something that you are really passionate about. Like when I am choosing my career, I'll pick something that I'm really, really passionate about. But it does not change the fact that friends and family will affect my decision because my entire family is filled with engineers and I see a lot of jobless people. So I was like, मेरे को तो नहीं करना भाई, मैं कुछ और select कर लूँगी. So I'm a design student now. So I picked something my parents would hate. Can we have a round of applause for you? May I know your good name, ma'am? My name is Khushi. Khushi. Yes. झलक रही है यार. So Thank you. very good. So it's a brilliant answer. Till now I have got in any session. So very good, Khushi. I liked your answer. So passion. Very good point, passion. यार लेकिन इससे एक क्वेश्चन है मेरे को. यार पैशन कैसे पता चलेगा मेरा पैशन है क्या? किसी को अपना पैशन पता है? यस यस, कैन वी पास ऑन द माइक देयर? Hello. Yes, sir. Hello, sir. या Yes, sir. पैशन. Yes, sir. I have a passion of writing poetry. ऑफ राइटिंग पोएट्री. Yeah. वेरी गुड. कब से सर? फ्रॉम व्हेन? Sir, when I was in school, I used to rhyme with words. यू आर राइटिंग बुक्स, तब आप लिखा करते थे? No, no, sir. I used to rhyme with words when I was राइटिंग विद वर्ड्स. Yeah. ओके 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 ओके. सर आप मैरिड हो? Yeah, sir. सो सच बताना, किसके लिए लिखा करते थे? सर मैंने आपके वाइफ है इधर? नहीं सर, अभी यहाँ नहीं है. तो बोल सकते हो बिंदास. या बोल सकता हूँ. यस सर. Should I go there? या यस, प्लीज कम आउट सर. Sir, till date I have written for almost everyone. If I'll have your number, then I think I can write poetry for you also on your birthday. यस श्योर सर, डेफिनेटली. पसंद आएगा यार. मेरे लिए आज तक किसी लड़की ने नहीं लिखा सर. डेफिनेटली एटलीस्ट आप तो लिखोगे मेरे लिए. Yeah, sir. प्लीज आई विल. तो अबाउट द पैशन, सो वी कैन सी अ वेरी पैशनेट बंदा हुआ ये पंजाब का लौंडा टाइप्स.
So, yeah. So he's pursuing his passion, following his passion. That's a very good thing. But कितने लोगों को यहाँ अपना passion पता है and they are following it? It's a very less number. कितने लोगों को अपना passion like पता है and they are following it? Very rare. One lady over there, one person over there. Okay, so among this कुछ 100 में से 1-2 लोगों को पता है, 2%. ओके, तो मैं बाकी 98% वालों के लिए इधर हूं, इनके लिए मैं खड़ा हूं इधर. आई विल हेल्प यू आउट. ओके, सो लाइक वी हैड टॉक्ड अबाउट हाउ डू यू चूज योर करियर, हाउ कैन यू चूज योर करियर. लाइक अभी जो आप फेस कर रहे हो, राइट नाउ लेट्स सी सम फैक्ट्स. Would you like to go through some facts? Yes, ma'am. Okay. So it's a like you can say a sad thing, a sad note, but ये fact जानना बहुत जरूरी है. In India, 12 to 13,000 students commit suicide because of stress of studies. इस पे रिसेंटली मूवीज वगैरह भी बनी, लाइक छिछोरे वाज वन ऑफ देम. 3 Idiots में भी इसके बारे में बोला गया, राइट. सो इट्स अ बैड प्लाइट, इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया. ये होना नहीं चाहिए, राइट. एवरीवन विल एग्री विद दिस, इवन द पेरेंट्स स्पेशली. लाइक बच्चे को बड़ा किया है, ये किया है, तो वो सुसाइड करे उसलिए नहीं यार, राइट. चलो और एक फैक्ट देखते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है. सो 85% ऑफ पीपल रियलाइज दे आर इन रॉन्ग प्रोफेशन एट द एज ऑफ 30 to 40. इज एनीवन विथ मी ओवर हियर हु बिलीव्स दिस? यस, यस, गुड. तो इसका भी सोल्यूशन है अपने पास, डोंट वरी. मैंने खुद के लिए सोल्यूशन ढूंढा तो आप लोगों को भी दूंगा. सो इससे आते हैं मेरे बैकग्राउंड पे. आई एम अ बी मैकेनिकल, MBA, वर्कड इन एन MNC, वर्कड इन टाटा मोटर्स, हैविंग अ फैमिली बिजनेस, 50 years old लेगेसी बिजनेस इन मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स. ये सब कुछ होने के बावजूद now I'm running a designing institution and I am a DMIT counselor. DMIT counselor. So basically इसका शिकार मैं भी हूं. At the age like जब मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला था, I was in Sheerghat College. मुझे जब कैंपस प्लेसमेंट मिला, I literally rejected that. मुझे एक्सेंचर में प्लेसमेंट मिला था, दो आई वॉज अ बी मैकेनिकल, बट एक्सेंचर में प्लेसमेंट मिला एंड आई रिजेक्टेड इट बिकॉज दे वर पोस्टिंग मी टू चेन्नई एंड मुझे पुणे छोड़ना नहीं था. उसके बाद मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालने लग गया, बट तब कहते हैं कि किसी कस्टमर ने मुझे आके बोला, यार तुझे धंधा ही संभालना था, तो इंजीनियर क्यों बना? और वो दिल पे लग गई यार. मतलब ये सही बात बोल रहा है कि एंड मतलब मैं इंजीनियरिंग में मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है. कुछ लोगों के लिए शर्म की बात होगी कि यार ये इंजीनियर है और बैकलॉग नहीं, बट स्टिल आई डिडंट हैव एनी एटीकेटी, नो बैकलॉग्स. आई क्लियर्ड विद डिस्टिंक्शन. और मैं धंधा संभाल रहा था, तो वो तो पहले भी था, सेट था. सो वो लग गई. उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड आई गॉट प्लेस्ड इन एन MNC. उसके बाद दिल किया कि यार कोई बड़े कंपनी में काम करते हैं, पार्टी शार्टी तो बहुत कर ली MNCs में, अभी कुछ नाम के लिए करते हैं. सो आई अप्लाइड लाइक दैट टाइम टाटा मोटर्स से ऑफर आई एंड आई वर्क फॉर टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स में 2 साल काम किया. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार पैसा मिल रहा है, नाम है अच्छा, किसी को भी बोलो. तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो टाटा मोटर्स में काम करता है और मैनेजर है वो बोला, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा वो प्रेस्टीज पॉइंट भी अच्छा मिल चुका था. बट दिल से इधर से कहीं सेटिस्फाइड नहीं था मैं. और ये बहुत लोगों के साथ होगा
या बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है एट द एज 30-40 होता है, यू फील लाइक चेंजिंग योर करियर, यार इसमें मजा नहीं आ रहा है। स्पेशली आजकल जो ये आईटी ट्रेंड है उस पर तो बहुत देखने को मिलते हैं। उनके लाइफ के 3 ही फंडे हैं, मंडे टू फ्राइडे कोडिंग करो, वीकेंड कहाँ जाना है, मेरा अप्राइजल कब होगा और मुझे ऑन साइट कब जाने मिलेगा। 3 ही फंडे, उसमें बेचारे अटक चुके हैं और उनका मन करता है कि इन सबसे मैं बाहर निकलूं, बट जॉब सिक्योरिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके वजह से लाइक आप ऐसे फर्म डिसीजंस नहीं ले सकते हो, राइट? नो वन कैन चेंज अ करियर ओवरनाइट, राइट? सो इस पे क्या कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। नाउ एन एवरेज इंडियन किसी भी लाइक नॉर्मल एजुकेशन अगर लेना है आपको तो आपका 25-1 लाख तो आराम से खर्चा होगा। और जैसे अभी ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फीस वगैरह सब बढ़ रहे हैं, लाइक मेरी लड़की है वो 3 साल की है, उसको मैंने वो नर्सरी में डाला, 1 लाख फीस है। मैं सोचा यार मैं 1 लाख में तो इंजीनियर बनना था, बट सीइंग दैट ये नंबर तो और बढ़ेगा 25 लाख के ऊपर। अच्छा, ये सब करने के बाद आज 10,000 मिलने की भी गारंटी नहीं है। दिस एवरीवन एग्रीज और नॉट? यस, कोई फर्म करियर नहीं है आज की तारीख में, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड एंड ऑल। यू कैन नॉट अश्योर एनी मार्केट। कोई बिजनेसमैन नहीं बोल सकता है, कोई जॉब वाला नहीं बोल सकता है, राइट? सो दिस इज द फैक्ट। सो लेट्स सी वन मोर थिंग। नेक्स्ट, India is going to be or is right now the youngest country or the youngest population country in the world. इसका मतलब क्या है? Can anyone explain this to me? इसका मतलब क्या है? Yes, so basically youth जो है, youth, the youngest population. Yeah, you want to answer, sir? Sir, over here. Yeah. Youngest population means the average age of the working people is very less as compared to other countries, especially European countries and American countries. But they are, the Chinese are very old. They are working at the age of 65. The average age is say 50. In India, the average age is 35. Okay. So the sir over here in front, he also wanted to answer. Yeah. The same thing. The average is 35. Okay. So India is young. I would clarify this कि इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है फ्रॉम द एज ग्रुप, जैसे आपने बताया फ्रॉम 18 टू whatever 59 इन इंडिया, दैट इज द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा आपको इंडिया में मिलेंगे। सो इसका कंक्लूजन क्या है बेसिकली? भाई कंपटीशन बहुत है, मानते हो? रैट रेस, ह्यूज रैट रेस। बच्चा पैदा होने से पहले डिसाइड किया जाता है वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, होता है? सॉरी, या सो बेसिकली this has become a very, you can say, rat race. You agree or not? This is a fact to be known, right? अब इस rat race को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इससे निकल के अपना रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, राइट? तो इसका भी सोल्यूशन मिलेगा। लेट्स सी। या अ ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक्स। शायद जो अभी यूजीज है जो पढ़ रहे हैं उनको ये अच्छा ना लगे, बट दिस इज द फैक्ट। एज पर AICTE, जो कि पूरे कॉलेज लेवल की गवर्निंग बॉडी है, दे स्टेट आजकल टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कैंपसेस में जो कैंपस प्लेसमेंट है दैट इज ओनली 28%. सो इन अ क्लास इफ देर आर 100 स्टूडेंट्स, देर इज पॉसिबिलिटी सिर्फ 28 बच्चों को मिलेगा जॉब, और ये AICTE का रिपोर्ट है। सो बाकी के लोगों का क्या? बाकी के लोग भी फीस भर रहे हैं,
वो भी पढ़ रहे हैं, राइट? ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स. लेट्स मूव अहेड. So now let's see what errors you are doing in like choosing your career. कि आप करियर चूज करने में कहाँ गलत जा रहे हो. सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस. सी द मेन थिंग इज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, इज डिफरेंट, राइट? दिस इज अ वर्ल्ड नोन फैक्ट. एंड ये DMIT से भी पता चलेगा कि हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है, वो अलग है, राइट? सो आपके फैमिली अगर किसी रिश्तेदार का रेफरेंस या किसी दोस्त का रेफरेंस देके आपको करियर के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है, सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इन चूजिंग योर करियर. सेकेंड मिस्टेक व्हाट यू डू, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत से लोग पुणे से है इधर. यस, कैन एनीवन टेल मी पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर कितने कोर्सेस है? एनी रफ आइडिया? एनीवन कैन गिव मी दिस इंफॉर्मेशन कि अगर चलो मान लो मैं किसी को अभी स्टेज पे बुलाऊं और पूछूं कि मुझे 10 से लेके 15 डिफरेंट कोर्सेस के नाम बता दो जो यूनिवर्सिटी के अंडर मुझे मिल जाएंगे. कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? क्योंकि हमें बचपन से सिर्फ इतना ही पता है, इंजीनियर, डॉक्टर, CA, LLB और कुछ 2-4. क्योंकि अपना ट्रेंड ऐसा है कि बच्चे को अगर 10th में 80% अबव मिला है, तू साइंस के लायक है. 60 to 80 है, तू कॉमर्स है. 60 के नीचे है, आर्ट्स में चला जा. दीज आर सम मिथ्स यू कैन से, जो इंडिया में बाय डिफॉल्ट फॉलो होती है. बच्चे को बोला, पूछा ही नहीं जाता है, वो बोलता है यार 80% मार्क मिला कि मैंने गलती कर दी, मेरे को साइंस में डाल दिया. उसको पसंद ही नहीं है साइंस, उसको मैथ्स पसंद ही नहीं है, लेकिन आपने डाल दिया. एंड द रीजन फॉर दिट इज कि आपको इंफॉर्मेशन है ही नहीं. आपको गिन चुन के अगर मैं 10 या 15 कोर्सेज के भी नाम लेने बोलूं, मुझे एक भी बंदा इधर नहीं मिलेगा या बंदी नहीं मिलेगी जो मुझे बता दे 15 कोर्सेज के नाम. सो दिस इज अ बैड प्लाइट. सो दैट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. उसके बाद जैसे मैंने मिथ्स के बारे में बताया, दीज आर द मिथ्स यू आर फॉलोइंग. इंटरेस्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था, चेंज होते रहता है, राइट? एंड अनदर थिंग इज द स्कोप. स्कोप जो है वो विद टाइम चेंज होते रहता है, राइट? यू बिलीव स्कोप चेंज होते रहता है. जैसे आज मान लो किसी का इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, राइट? क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन उसके लिए स्कोप क्या है? तो IPL है स्कोप आज की तारीख में, राइट? लेकिन इसमें और एक चीज जानना जरूरी है. भाई तुझे बैट पकड़ने आती है? अगर तुझे इन स्विंग या स्पिन या आउट स्विंग इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्रिकेटर बनेगा कैसा? स्कोप तो बहुत है IPL में, लेकिन क्रिकेटर बनेगा कैसा? होता है, फैक्ट है. सो दीज आर ऑल फैक्ट्स आई हैव टोल्ड अबाउट. इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ये आप खुद से कोरिलेट कर पाओगे. एक there was a school for birds and animals, okay? So सबसे पहले उसमें एडमिशन ले जाता है डक एडमिशन ले जाता है. एंड इट इज सेड कि वो टीचर से बात करता है. टीचर सेज आपको 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी है. विच 3 सब्जेक्ट्स? फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग. द डक सेज I can swim, running and flying it's tough for me, still I can try flying, but running is very tough for me. अभी अब इसको आप खुद से कोरिलेट करते जाना, जो बचपन से आज तक जो फेस करते आए हो. द टीचर सेज कोई बात नहीं, ट्यूशंस लगा दो, रनिंग के लिए ट्यूशंस लगा दो, यू कैन रन, ट्यूशंस लगा दो. पूरा साल डक रनिंग की प्रैक्टिस करता है.
रिजल्ट में क्या आता है? डक जो है वो रनिंग में कैसे वैसे पास हो जाता है, फ्लाइंग और स्विमिंग में फेल हो जाता है. यू कैन कोरिलेट दिस विथ यू. द सेकेंड स्टूडेंट इज स्क्विरल. स्क्विरल पता है सबको? स्क्विरल जाते हैं एडमिशन लेने. स्क्विरल को बोला जाता है अगेन 3 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग. स्क्विरल सेज I can run, swimming is tough for me, or flying, so it applies his brain. He said, मैं अगर पेड़ पे चढ़ते जाऊं और वहां से नीचे कूद जाऊं, can I qualify flying? उसको टीचर बोलती है, बेटा दिस इज नॉट इन सिलेबस. एज पर सिलेबस नीचे से ऊपर जाना है. कोरिलेट हो रहा है आप सबको? हुआ है आपके साथ? होता है आपके साथ? नाउ द थर्ड, पैरेट. बेचारा पैरेट जाता है अगेन 3 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी. पैरेट बोलता है भाई आई कैन फ्लाई, मुझसे रनिंग और ये स्विमिंग होगा नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं, आई गिव अप. उसके घर वाले उसको पकड़ के केज में डाल देते हैं. वहां पे एक स्विंग लगा हुआ रहता है एंड द होल लाइफ उसको बोला जाता है बैलेंस ऑन दिस स्विंग. दिस इज वॉट यू आर डूइंग, बैलेंसिंग योर लाइफ, ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, ट्राइंग टू गेट द सिक्योर जॉब, ट्राइंग टू लाइक सिक्योर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर रिलेशनशिप्स. यही आप पूरे लाइफ कर रहे हो. यू एग्री और नॉट? यही सब हुआ है आपके साथ, होता है आपके साथ, राइट? यू एग्री और नॉट? तो अगर ऐसा होता तो क्या हमें ये नाम देखने मिलते? द लेट लता दीदी, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, A.R. Rahman, you know these Ritesh Agarwal, Kailash Katkar and Azhar Iqbal. Are these the big personalities? वो तो है. अगर इन्होंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के चक्कर में गिरते तो आज ये नाम सामने होते. See why these 3 names at the bottom? Ritesh Agarwal, college dropout. Kailash Katkar, he is the CEO for founder of Quick Hill. Ritesh Agarwal for OYO. Azhar Iqbal for InShots. जितने आप मोबाइल में आजकल न्यूज देखते हो, InShots, you must be using InShots, right? All these are college dropout personalities, and today they are big name. Same way, अगर सचिन तेंदुलकर आपको अगर पता रहेगा, he failed in English in 12th. Today there is chapter of Sachin Tendulkar in English subject in 12th standard. Right? लता दीदी को अगर बोला जाता कि मैडम आप डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर में बड़ा स्कोप है, हमें लता दीदी मिलते हैं आज? नहीं. So what is the learning from this? इसके लिए मैं और एक छोटा सा एक माइथोलॉजिकल फैक्ट बोलता हूं. एक बार लक्ष्मी जी भगवान जी के पास गए. मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूं, आपने मुझे क्या दिया? मुझे कुछ तो दे दो, वरदान दे दो. भगवान जी कहते हैं ठीक है, मैं आज आपको एक वरदान देता हूं, आप किसी को जो चाहे वो दे सकते हो, लेकिन छीनने का हक मेरे पास रहेगा. ये देख के सरस्वती जी भगवान जी के पास जाते. लक्ष्मी जी को दे दिया, मेरा क्या, मैं भी आपकी भक्ति करती हूं. भगवान जी ने कहा ठीक है, चलो आपको भी मैं एक वरदान देता हूं, आप जो चाहे किसी को दे सकते हो, लेकिन छीनने का हक मेरे पास नहीं होगा. So what is the learning from this?
जो आपके स्किल्स है, इनबॉर्न टैलेंट्स है, जो पोटेंशियल्स है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता. दे आर वेटिंग टू गेट इंस्पायर्ड इनटू एक्शन. Your inner talents, your inner potentials are waiting to get inspired into actions. Now, आपके मन में आता होगा कि लेकिन हमारे इनर पोटेंशियल, हमारे इनर टैलेंट्स हमें पता कैसे चलेंगे? How will we come to know that? So, उसका सोल्यूशन लेके मैं आज आपके सामने हूं. So, the question. So basically, how can you choose your correct career? And it's not only about your career, but many facts in life जो हम देखेंगे आगे. So next, why not go for DMIT? So you must be thinking DMIT, like जीतो भी बहुत बोल रहा है DMIT सेशन है, लेकिन DMIT है क्या? Exactly what is DMIT? And वो हमें करियर या लाइफ या पर्सनैलिटी या जो मैंने अभी like इतने चिल्ला के बोला कि नो योर इनर पोटेंशियल, नो योर इनबॉर्न टैलेंट्स, ये आपको कैसे पता चलेगा? सो उसका आंसर है DMIT. सो लेट्स सी व्हाट इज DMIT नाउ. सो DMIT स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. सो डर्मेटोग्राफिक्स क्या है? व्हाट इज डर्मेटोग्राफिक्स? इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो डर्मा मीन्स स्किन and graphics means pattern. So basically it is the study of your fingerprint patterns. उसके साथ आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो यूज होती है, जिससे आपके इनबॉर्न इंटेलिजेंसेस, इनबॉर्न टैलेंट्स, ये सब उससे पता चलते हैं. एंड इसका बहुत अच्छा या वन मोर थिंग, ये मैंने स्पेशली इस टाइम ऐड किया बिकॉज लास्ट जीतो में जब मैंने ये सेशन किया था, उसके बाद बहुत से लोग DMIT के लिए मेरे ऑफिस पे आए थे. तब एक बंदे ने मुझे कॉल पे पूछा था, सर मैं पत्रिका लेके आऊं क्या? मैं बोला भाई मैं पंडित हूं क्या, मैं कोई भविष्य नहीं बताता. सो दिस इज नॉट एट ऑल एस्ट्रोलॉजी, दिस इज प्योर साइंस, साइंस ऑफ जेनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिसिन. नो एस्ट्रोलॉजी, नो साइकोमेट्रिक टेस्ट, नथिंग. मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करूंगा. जब आपका DMIT टेस्ट होगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. आपके फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद रिपोर्ट जनरेट करके मैं आपको बताऊंगा ये आपके टैलेंट्स है, ये आपके इनबॉर्न पोटेंशियल्स है, विदाउट आस्किंग यू अ सिंगल क्वेश्चन. जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है. आपको क्वेश्चन सेट दिए जाते हैं, क्वेश्चनियर दिए जाते हैं. बट साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आप संडे को करो और वही टेस्ट मंडे को करो, दैट विल गिव यू डिफरेंट रिजल्ट्स. बट फिंगरप्रिंट्स आपके लाइफ में कभी चेंज नहीं होंगे. और एक चीज बताना, किसी दो इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट सेम है क्या? अगर है तो हाथ ऊपर करो भाई. नो, दैट्स व्हाई इट इज सेड every individual, every human being is unique. You got the science behind it. हर एक के अगर फिंगरप्रिंट अलग है तो हर एक बंदा भी, हर एक बंदी भी अलग है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट कम्स मोर इन DMIT. सो as said, fingerprints of every individual are unique and you won't have any two identical fingerprints. अभी इसके पीछे एक साइंस भी है. स्पेशली जितने लाइक इधर वुमेन है उनको पता होगा 13 to 21st week in the mother's womb is the brain development period, and the same is the period of fingerprint development. That's why there is a direct correlation between your fingerprints and your brain. Am I clear? समझ आ रहा है? साइंस समझ आ रहा है? Can you pass on the mic? There is a doubt over there. Hello. Sir, can you explain practically? Sorry? Can you explain practically? Practically as in मतलब
प्रैक्टिकली आप किसी को बुला करके बता सकते हैं कि ये कैसे होगा या क्या होगा? यस यस, मैं आगे उसी में जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सारा। सो बेसिकली इसमें और एक चीज है, आपके फिंगरप्रिंट्स लाइफ में कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे हमने देखा था इंटरेस्ट चेंज होते हैं, इंटरेस्ट चेंज होते हैं, स्कोप चेंज होता है, बट द थिंग इज आपके फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होंगे। और सबसे बढ़िया बात, जिन्होंने मुझे खास पूछा था कि ये मेरे एज के लिए है क्या, सो दिस कैन बी डन राइट फ्रॉम द एज ऑफ 4 टिल एंटायर लाइफ। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। ऐसे ही एक सेमिनार में कॉलेज में कर रहा था कुछ, वहां की प्रिंसिपल रिटायर हो रही थी, समवेयर अराउंड एज 58-60 के आसपास होगी। शी वॉज लाइक, मुझे डीएमआईटी टेस्ट करना है। आई सेड श्योर, व्हाई नॉट। जब उनका रिपोर्ट, लाइक वी हैड काउंसलिंग सेशन, उनके रिपोर्ट में उनके जो म्यूजिकल स्किल्स है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो स्किल्स क्या क्या होते हैं इसमें, कैसे पता चलते हैं। उनके म्यूजिकल स्किल्स हाई लेवल पे थे, लाइक इन द हाई परसेंटेज। आई सेड मैम म्यूजिक पसंद है, कुछ बजाया है, कुछ गाया है? शी सेड स्कूल से कभी फुर्सत नहीं मिली, कॉलेज से कभी फुर्सत नहीं मिली, कुछ नहीं किया। मैंने बोला रिटायरमेंट में क्या काम है, यही करो। शी सेड इस एज में क्या करोगे? मैंने बोला मैम ट्राई तो करो। एंड यू वोंट बिलीव, बट दिस इज अ ट्रू फैक्ट, एट द एज ऑफ 60 उन्होंने क्लास ज्वाइन किया ऑफ दैट हारमोनियम। एंड जो बाकी के यूथ जो पढ़ रहा था, उससे फर्स्ट ग्रास्पिंग इन लेडी का था, जिन्होंने मुझे कॉल करके वापस बुलाया एंड शी मेड इट मैंडेटरी कि डीएमआईटी मेरे कॉलेज में कंपलसरी कर दो। दिस इज द फैक्ट। These are some actual results which you can find. Let's see आगे क्या क्या है इसमें, बहुत मसालेदार है, मजा आएगा आपको। So what can you know from your DMIT report? Let's see one by one. First, your inborn multiple intelligence. तो हर इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में, लाइक यू कैन से, कैटेगराइज किया जाता है। हर एक इंडिविजुअल में ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होंगे ही, बस उसका परसेंटेज कम ज्यादा होगा, राइट? सो जैसे जिसका परसेंटेज, वैसे उसके लिए कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेस। देयर इज वीकनेस इन एवरी स्ट्रेंथ एंड देयर इज स्ट्रेंथ इन एवरी वीकनेस, राइट? सो ये आपको यहां से पता चलेगा। फर्स्ट इज योर इंट्रापर्सनल स्किल्स। सो व्हाट आर इंट्रापर्सनल स्किल्स? Whatever you do with your self-confidence, that comes in your intrapersonal skills. आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग कम्स इन इंट्रापर्सनल स्किल्स। अगर इसका परसेंटेज हाई है, यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट, बट इसका अगेन ये भी निकलता है कि यू कैन बी मोर ऑफ अ इंट्रोवर्ट, आपका स्मॉल सर्कल हो सकता है, राइट? सो ये सारे बातें हम जब आप इंडिविजुअल का रिपोर्ट करेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, उसमें ये सारी बातें मैं इंडिविजुअली मोर डेप्थ में बताऊंगा। अभी मैं बस एक क्रिस्प बता रहा हूं आपको, ठीक है? सो नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल। सो व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल? यस, एनीवन वाज ट्राइंग टू से समथिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स, social skills, very good answer, and a very loud answer, like without mic I could hear it. So yeah, your social skill, how good you interact socially with the people, with the others, that comes in your interpersonal skill. Basically आज जो ये स्टेज पे मैं खड़ा हूं, that comes in your interpersonal skill. The ability to interact, the ability to present, ability to perform, that comes in interpersonal skills. नेक्स्ट इज, ये सबने सुना होगा, लॉजिकल स्किल। हम कई बार बहुत से लोगों को देखते हैं, मैथ्स बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, होता है मैथ्स इज नॉट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, दे डोंट लाइक मैथ्स। मुझे तो इंजीनियरिंग में लाइक बहुत मिलते थे ऐसे, वो M3 M2
बहुत दिमाग पे से जाता है, समझ में नहीं आता है। तो तब ये पता नहीं था, लेकिन आज इसका रीजन पता चला व्हाई दे डोंट लाइक मैथ्स। बिकॉज उनके जो लॉजिकल स्किल्स है दोज आर लेस। सो अगर ऐसे बच्चे को आप बोल रहे हो भाई इंजीनियरिंग कर, क्या होगा? बैकलॉग पे बैकलॉग लाएगा नहीं लाएगा, राइट? यार इंस्टेड ऑफ लॉजिकल स्किल्स उसके कोई और स्किल्स स्ट्रांग हो गए, व्हाई नॉट अ करियर इन दैट, राइट? नेक्स्ट कम योर विजुअल स्किल्स। विजुअल स्किल्स में क्या होता है? द इमेजिनेशन पावर। लाइक समवन ओवर देयर वाज सेइंग आई लाइक डिजाइन। सो व्हाट आर डिजाइनिंग स्किल्स? हाउ दीज स्किल्स कम? बेसिकली अगर जो भी यहाँ पे वो डिजाइनर है, अगर मैं उसको बोल दूं कि ये स्टेज है, इसको मुझे एक कमरे में कन्वर्ट करना है इन नेक्स्ट 4 to 5 hours, दैट इमेजिनेशन कि इसमें क्या करना चाहिए, ये उस डिजाइनर में होगा, जो हर किसी में नहीं होगा शायद, लेकिन शी कैन कम अप विद द बेस्ट आइडिया। दैट कम्स फ्रॉम योर विजुअल स्पेशल स्किल्स। देन द कैनेस्थेटिक स्किल्स, आपके बॉडी मूवमेंट, जो भी आईपीएल की इच्छा रख रहे हो, कबड्डी प्रो लोग लाइक जो लीग है उसकी इच्छा रख रहे हो, अगर कैनेस्थेटिक स्किल्स अच्छे हैं, बॉडी कंट्रोल अच्छा है, यू कैन बी अ गुड स्पोर्ट्समैन, गुड प्लेयर। देन कम्स योर म्यूजिक एंड इमोशंस। सो म्यूजिक एंड इमोशंस, कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत इमोशनल होते हैं और लाइक लोगों को सुर ताल राग की समझ बहुत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक हॉबी की तरह देखा जाता है। ये तेरा हॉबी क्लास है, सिंगिंग करना है, हॉबी क्लास है। भले उस बंदे को या बच्चे को जो भी है उसका नॉलेज काफी अच्छा है, समझ बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको फोर्स कर रहे हो कि उसको एक हॉबी की तरह देख, अपना आके मैथ साइंस पढ़। तो ये कहीं पे हम रॉन्ग कर रहे हैं, डोंट यू थिंक? या सो द नेक्स्ट कम्स इज लिंग्विस्टिक स्किल्स। कोई लोग आपने देखे रहेंगे जो मान लो पुणे में नहीं है, लाइक कई दूसरे स्टेट से है और वो इस स्टेट में आ जाते हैं, तो 15 दिन में कोई लैंग्वेज नहीं सीख लेते। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स आर राइट। नेक्स्ट कम योर नेचरिस्टिक, जिनका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है, द मेमोरी, यू कैन से एक बार कुछ देख लिया या दिमाग में ये पिक्चर आ गया, उसका कनेक्ट वो काफी अच्छे से कर सकते हैं। या फिर यू कैन से जो सेंसेस है अपने, टच टेस्ट स्मेल, उनको वो काफी अच्छी होती है, तो वो काफी अच्छे शेफ बन सकते हैं, डोंट यू थिंक? लेकिन नहीं, हमको उनको मैथ साइंस ही पढ़ाना है, राइट? नेक्स्ट आपको और डीएमआईटी से क्या पता चलेगा? सो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट एंड राइट ब्रेन डोमिनेंट। आपको पता है द टू ब्रेन, बहुत से लोगों को ये पता होगा कि अपना राइट हैंड इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट ब्रेन एंड लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू आवर राइट ब्रेन। सो जो राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, दोज आर यू कैन से क्रिएटिव पीपल, एंड जो लेफ्ट ब्रेन होते हैं, दोज आर एनालिटिकल पीपल। उनको आप एनालिसिस दे दो। और जो मैंने एक स्टैटिस्टिक बताया था कि एट द एज ऑफ 30 बहुत से लोगों को करियर चेंज करने का मन करता है, जॉब चेंज, व्हाटएवर फील्ड चेंज, ये इसके वजह से भी आता है। अगर आप एनालिटिकल ब्रेन हो, आप कंटिन्यू हर किसी को एनालाइज करते रहोगे, एंड दैट में रिजल्ट इनटू स्ट्रेस in your relationships, in your work balance. It is one of the reason why you feel कि at the age of 30 or something I need to switch. होता है. This is the science behind it. Next, the learning style. It's a very good input you get from this report. कि especially ये जो like kids over here, आपकी learning style कौन सी बेस्ट है? Like किसी किसी को सुन के दिमाग में रहता है, किसी किसी को देख के, किसी किसी को जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, लिखता नहीं है उसको,
या फिर उसको एक्सपेरिमेंट टच फील नहीं करता है, तब तक उसके दिमाग में घुसता नहीं है। ऐसे तीनों टाइप के लोग आपने देखे होंगे, या आपके बच्चों में भी आप देख सकते हो कि किसी किसी बच्चे को एक बार बोल दिया दिमाग में बैठ गया, उसकी वो लर्निंग स्टाइल काफी अच्छी है। किसी किसी को देख के यूट्यूब पे देख के अच्छा सीख रहा है, और कोई कोई जब तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक दिमाग में घुसता नहीं। होता है, देखा है? यस। सो ये भी इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा व्हाट इज योर बेस्ट लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट, दिस इज, ये सबका फेवरेट होता है। सबसे पहले जब भी मैं रिपोर्ट करता हूं, उसके बाद आके जब काउंसलिंग में मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं सबसे पहले हमारी पर्सनालिटी बता दो क्या है। ये 4 बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, डव, पिकॉक, ईगल, आउल। ये 4 बर्ड्स को रिजेंबलिंग आपकी पर्सनालिटीज होती है। हर इंडिविजुअल इसी में कैटेगराइज्ड होता है। एज द नेम सेज और एज द ट्रेट सेज, ईगल जो है वो काफी डायनामिक होगा। अ गोल गेटर, जो ईगल वाला बंदा होगा रुकेगा नहीं एक जगह, भले पेरेंट्स बोल रहे इंजीनियर बन, लेकिन नहीं, मेरा जो पैशन है वो मैं वो फॉलो करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। दैट इज द ईगल गोइंग अबाउट द हाइट्स। नेक्स्ट, आउल, अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। आउल वाले जो होते हैं, लाइक स्पेशली जब मैं मैरिड लोगों के ये करता हूं काउंसलिंग, सबसे पहले आके मुझे वही कहते हैं कि जो हस्बैंड लोग हैं वो वही कहते हैं, प्लीज बाकी के वुमेन डोंट माइंड, बट वो कहते हैं कि 100% मेरी वुमेन जो होती है, मेरी वाइफ जो है वो आउल होगी। हर बंदे का यही स्टेटमेंट होता है। व्हाई? बिकॉज आउल वाले जो होते हैं वो कभी किसी के सुनती नहीं। तो प्लीज डोंट माइंड। लेकिन आउल वाले जो होंगे, जब तक वो कन्विंस नहीं होते, जब तक आप उनको पूरे फैक्ट्स डिटेल्स नहीं बताते, तब तक आउल वाले कन्विंस होगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं डीएमआईटी कर लो, नहीं उससे क्या होगा, नहीं डीएमआईटी से ये पता चल, नहीं उससे क्या होगा। दीज आर सम पिक्युलरिटीज ऑफ आउल पर्सनैलिटी। आप कितने भी कोशिश कर लो, तो दैट्स व्हाई आई फेस दिस, कि मेरी बीवी आउली होगी सर, सुनती ही नहीं, कभी कितना समझाने की कोशिश करो, सुनती ही नहीं है। देन कम्स द पिकॉक। पिकॉक आर द वंस who like center of attraction, personalities, the big personalities, yeah, you can say the fames. This comes in the peacock personality. And then comes a dove. Dove वाले जो होते हैं, they are a good team player, a good follower, steady, शांत। वो लोग जो होते हैं, जो कि हर हस्बैंड ये करता है कि सर मैं डव ही होगा, शांति से सब सुनता हूं। So they pretend they are dove, but मुझे रिपोर्ट में सब पता चलता है कौन डव है, कौन ईगल है, कौन आउल है। ओके, सो दीज आर अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप्स। नेक्स्ट, क्या पता चलता है इस रिपोर्ट से? सो योर क्वेश्चंस, ये सब लोगों ने सुना होगा आईक्यू 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 आईक्यू, द इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कि मेरा आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। आईक्यू अच्छा है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, राइट? सो इस रिपोर्ट से आपका आईक्यू लेवल, एंड नॉट ओनली दैट, बट कि आपका इमोशनल क्वेश्चन, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन एंड योर क्रिएटिव क्वेश्चन, ये सब भी इस रिपोर्ट से आपको पता चल सकता है। सो बेसिकली बहुत सारे मारवाड़ीज भी हो गए इधर, जिनको बिजनेस करना लाइक अपने ब्लड में होता है, खून में होता है बिजनेस करना है। तो इसमें जब कोई लॉस आता है या फिर कुछ पैसे डूब रहे ऐसे दिख रहा है, दैट टाइम हाउ गुड यू हैंडल सिचुएशन और हाउ गुड यू कैन हैंडल द सिचुएशन, ये डिपेंड करेगा आपके AQ पे, द एडवर्सिटी क्वोशंट। अगर आपका एडवर्सिटी क्वोशंट काफी अच्छा है, बिंदास बिजनेस करो, लॉस आया तो भी टेंशन नहीं।
अंडरस्टूड? वैसे ही क्रिएटिव क्वेश्चन है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स पता चलती है. या कैन वी पास ऑन द माइक हियर? एग्रेसिव क्वेश्चन क्या रिस्क फैक्टर में काउंट होता है कि नहीं? कौन एक्स फैक्टर में AQ रिस्क फैक्टर में काउंट होता है कि नहीं? होता है? यस, AQ इज अबाउट द रिस्क एक्चुअली. काफी छोटे उम्र में रिस्क ले रहा है तो. सो लेट्स मूव ऑन. या एंड based on all these analysis we can come to some conclusions कि ये career domains, I won't say कि आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, बट मल्टीपल करियर डोमेन्स में आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका आंसर आपको इस रिपोर्ट से मिल सकता है. एंड दिस कैन बी एट एनी एज. अगर आप एट द एज ऑफ 30 भी आते हो कि आई एम प्लानिंग टू स्विच माई करियर, सो दैट टाइम वी कैन थिंक ऑन दैट कि फिर कौन से दूसरे डोमेन्स में आप जा सकते हो. ओके, नेक्स्ट. या एंड आई थिंक कुशल वॉज वेरी इंटरेस्टेड ऑन दिस. सो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी. या सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट टाइम, सो इससे रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलता है, यू आर सेइंग. सो या, सो व्हाई दिस रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी? जैसे हमने पर्सनैलिटी का मैंने एक एग्जांपल दिया कि हस्बैंड जब आता है हमेशा बोलता है ये आउल है, और हमेशा प्रेजेंट करता है मैं डव हूं. सो ये जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो होती है, इनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे आप अच्छा रख सकते हो, ये आपको इस रिपोर्ट से डेफिनेटली पता चल सकता है. द डिफरेंट कंपैटिबिलिटीज. ओके, नेक्स्ट. या so the summary of all this ki how can it be useful to you in your life. Let's see again a summary of it, so you can identify your core competence as well as your weaknesses. You can choose your best career, you can improve your relationships definitely, and this relationship is not only about your husband, wife or girlfriend, boyfriend, whatever. It was just an example. It is all your relationships. अगर आप जॉब कर रहे हो तो रिलेशनशिप विथ योर मैनेजर, अगर आप पेरेंट हो तो रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन, द पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, एंड अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, नहीं रहेगा. ऑल दिस थिंग कम अंडर योर रिलेशनशिप्स. ओके, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज अबाउट ऑल द रिलेशनशिप्स. ओके, नेक्स्ट. जैसे हमने देखा था एक एजुकेशन पे, नॉर्मल एवरेज एजुकेशन पे आप 25 लाख डाल रहे हो, लेकिन आप मारवाड़ी हो. अरे ROI तो देखो, रिटर्न आने वाला है, कितना आने वाला है ये तो सोचो. तो उसका बेस्ट आपको यहां से मिलेगा कि आप अननेसेसरी चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करोगे. क्यों जबरदस्ती? अगर किसी की ड्राइंग की इच्छा नहीं है, अब बोलते हो यार समर वेकेशन से ड्राइंग क्लास लगा. मैं देखता हूं बहुत से पेरेंट्स आते हैं, ड्राइंग क्लास लगाना है, ड्राइंग क्लास लगाना है. वो बच्चे को यार जबरदस्ती बेटा, वो बेटा बेटा भाग जाता है. मैं खुद ड्राइंग क्लास से 2-3 बार भाग चुका हूं जब मैं छोटा था. यार ड्राइंग मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन समर वेकेशन में क्या करना है, तो सबका फेवरेट होता है कि मुझे ड्राइंग क्लास लगाना है बच्चे को. सो यू कैन इन्वेस्ट प्रॉपरली इन योर वट एवर करियर, योर पाथ्स. Right? Next. So because of this, you can avoid wastage of time, money and efforts. Basically आपका जो valuable time है वो वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि टाइम इज नेवर गोइंग टू रिवाइंड. एक बार जो एज निकल गई वापस नहीं पीछे जाने वाले हो. एक बार जो डिसीजंस लिए वापस पीछे नहीं जाने वाले हो. गॉट इट? सो इससे आपका टाइम भी बचेगा, अननेसेसरी चीजों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, मनी वेस्ट नहीं करोगे, एंड एट द एंड अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं करोगे. ओके, एंड ऑल्सो डेफिनेटली कैन हेल्प यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस. हमने देखा था स्ट्रेस के वजह से 12 से 13 हजार लोग
सुसाइड कर रहे हैं. सो दैट कैन बी इजीली अवॉइडेड. नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, कुछ और कर लो यार, बहुत से ऑप्शंस है दुनिया में. अंडर पुणे यूनिवर्सिटी देयर आर 3,500 डिफरेंट सर्टिफाइड कोर्सेस. अंडर पुणे यूनिवर्सिटी, इट्स ओनली अबाउट पुणे यूनिवर्सिटी. सो सोचो कितने सारे ऑप्शंस है which can be explored, right? Next, जो like if you think from corporate point of view, जो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं या चला रहे हैं, उनके लिए DMIT कैसे यूजफुल है वो भी हम देख लेते हैं एक बार क्विक में. या सो यू कैन प्लेस द राइट टैलेंट एट द राइट पोजिशन. अगर कोई मार्केटिंग के लिए अच्छा बंदा है, उसमें ट्रेड्स है मार्केटिंग वाले, तो मैं उसको डेफिनेटली बिजनेस डेवलपमेंट में डाल दूंगा, राइट? सो दिस वे यू कैन प्लेस द राइट इंडिविजुअल एट द राइट पोजीशन. नेक्स्ट, सो प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग आप इसमें कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट के पहले आप उसका DMIT कर लो और फिर जो डिपार्टमेंट देना है दे सकते हो. यू कैन डिस्कवर द इनबॉर्न टैलेंट ऑफ योर स्टाफ. And lastly, you can produce an all-star performing team. Right? This is for corporates. Next. So, DMIT वर्ल्ड वाइड कैसे यूज हो रहा है और कहाँ यूज हो रहा है? तो अगर आप रशिया में देखोगे तो जो भी ओलंपिक प्लेयर्स चूज हो रहे हैं उनका DMIT किया जाता है. चाइना में अगर कोई रिक्रूटमेंट हो रही है उसका DMIT किया जा रहा है. जापान में स्पेशली एट द एज ऑफ 4 और 5 बच्चे का DMIT किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट उसको उस करियर या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू दैट दिया जाता है. सो इंडिया में 2015 से कुछ ये ट्रेंड में आ रहा है एंड सो व्हाई नॉट वी? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Right? Even we can go for it. So let's see next. Yeah, so now at the end, can you answer these questions? कि जब भी आप कुछ करियर चूज करते हो या फिर whatever you do in your life, can you answer these questions? First, what do you love? Second, what are you good at? Third, what does the world need? And fourth, what can you get paid for? अगर ये 4 क्वेश्चन आप आंसर कर पाए तो लाइफ में आपको कोई रोक नहीं पाएगा. These are my words, mark my words. And ये आंसर्स लाइक आप DMIT से काफी अच्छे से दे पाओगे. This can solve your all queries of life. Okay? So I think that's it. My session. At the end मैं बस यही बोलूंगा कि your life starts with B and ends with D, where B stands for birth and D stands for death. What lies in between is C. And what C stands for? Yes? Choice? You are 50% correct, ma'am. Choice of? Yeah, so it's where C stands for the choice of your career. So please choose wisely. I just wanted to ask, as a teacher, मुझे पता होता है कि बच्चों के इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते ही रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज. 4 साल के बच्चे की प्रायोरिटी अलग है, 15 साल के बच्चे की प्रायोरिटी अलग है और एक 20 साल के बच्चे की प्रायोरिटी अलग है. Correct. और बच्चों का मूड भी चेंज होता है. Exactly. अगर मैं DMIT करती हूँ तो ये कितने हर पीरियडिकली करना चाहिए? इज इट एडवाइजेबल या फिर एक बार में क्या हो गया? Yes. Very good question, ma'am. So the answer to this is DMIT जो है, जैसे मैंने कहा फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होंगे. सो फिंगरप्रिंट्स एक बार आप टेस्ट कर देते हो तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. उस रिपोर्ट को आप लाइफ टाइम रिफर करो. यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चंस कि इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका काउंसलिंग में सब पता चल जाएगा आपको. एंड फिंगरप्रिंट्स अगर चेंज नहीं हो रहे तो सेम वे उसका रिपोर्ट जो है वो कंटिन्यू वही एप्लीकेबल रहेगा फॉर एंटायर लाइफ.
हां नाही आत्ता एक दोन घेऊ जे आउट ऑफ पुणेचे आहेत.